Good morning students, myself Anurag Singh. Today I am going to explain the topic matrices. What is the matrices? First of all, if we discuss about the topic matrices, the first question is what? Sir, why we are learning about the matrices? So matrices is the systematic arrangement of numbers. Matrices is what? Is a systematic arrangement of numbers. Systematic arrangement means जैसे सपोज कर लो मैंने नंबर्स को अरेंज किया 3, 5, 2, 9, -3, 7 और इसको एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया तो दिस इज अ मैट्रिक्स इन विच these numbers 3, 5, 2, 9, -3 and 7, all these numbers are known as element of the matrices. क्या बोला जाता है बेटा? element of the matrices. matrices को जो अरेंज करते हैं ना तो they are arranged in the row and columns. first line 3, 5, 2, this is known as row 1 represented by R1. Second line 9, -3, 7, this is rows arranged by row 2 and known as row 2 second row and this is first row. ये हमने लाइन में देखा. अब अगर यही चीज सेम ऐसा देखें अप टू डाउन 3 and 9 is known as element of column 1, element of column 1. 5 and -3 is known as element of column 2 and 2, 7 is known as arrangement of column 3. Is that clear? तो arrangement of row and columns. रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? 3, 5, 2. सेकेंड रो में 9, -3 and 7. फर्स्ट कॉलम्स एलिमेंट 3 and 9. सेकेंड कॉलम्स एलिमेंट 5 and -3, third columns element 2 and 7, right? This matrix contain 2 row and 3 column. How many row? 2 row and columns 3. Therefore, the order of the given matrix, order of the matrix is equal to 2/3. फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको? कॉलम को. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट? 2/3. 2 into 3 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते इसको? 2/3. क्लियर? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 6. काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6. दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई रो एंड कॉलम्स, if we multiply row and columns, then the result is equal to the number of elements present in the given matrix. Is that clear? Next thing, this number 3 is the position of first row and first column, therefore its notation is represented by A11, element of first row first column, which is equal to 3. Next, position of number 5, first row second column, that means A12, that is equal to what? 5. Next, first row third column, element is what? 2. First row third column A13 is equal to what? 2. Similarly, element of second row first column, which row? Second row and first column is equal to what? 9. That means A21 is equal to 9. A22 second row second column, what is second row? -3, second column -3, that means -3, and A23 is equal to
what? Second row, third column, which is equal to 7. This is the standard notation of matrices A11, A12, A13, A21, A22, A23, and similarly third row for fourth row and so on. Right now, number of row and number of columns आपके पास कितने हैं उस पर ये डिपेंड करेगा. Is that clear? नोटेशन समझ में आया आपको बेटा? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. What is matrix? Systematic arrangement of numbers is known as matrix. Numbers are arranged in row and in columns. First row, second row, first column, second column, third column. This number 3 is the position of first row and first column, therefore it is represented by A11. This number is the position of first row, second column, therefore it is known as A12. ये numbers क्या है बेटा? Elements हैं. क्या है ये? Elements हैं. इनका order क्या होगा? Order of the matrix is number of row by number of column. Number of row by number of column. This matrix contains 2 row and 3 columns, therefore its order is 2 by 3. If we multiply order 2 into 3, then we will get what? 6. This 6 is the total number of elements in the given matrix. यहाँ तक मैंने आपको अभी बताया. Is that clear? If you have any doubt, you can ask me. Okay? Next word, types of matrix. Types of matrix. First of all, I am going to explain few matrices. First, row matrix. Which matrix? Row matrix. A matrix which contains only one row. फिर से सुन लेना ध्यान से, स्टेटमेंट वर्ड जो बोल रहा हूं मैं बहुत ध्यान से सुनना. A matrix which contains only one row is known as row matrix. मैंने सिर्फ रो का नाम लिया है बेटे, कॉलम की बात नहीं की. A matrix which contain only one row. एग्जाम्पल देख लो आप. एग्जाम्पल होगा इसका क्या? 3, 5, -2. Is that clear? Look here. How many row are there? Only one row. Columns कितने हैं? कोई रीजन नहीं. एक कॉलम हो, 2 कॉलम हो या 3 कॉलम हो, अपने को उससे मतलब नहीं है. We need only one row. Is there any only one row? Yes. इस मैट्रिक्स में only one row है. Therefore, the given matrix is known as row matrix. Done. Next word आएगा बेटा column matrix. Column matrix. What is column matrix? Similarly, जैसे हमने रो मैट्रिक्स में बताया था ना कि क्या बताया था? A matrix which contains only one row is known as row matrix. Similarly, a matrix which contains only one column. A matrix which contains only one column is known as column matrix. Example 3, 5, 2. Look here. How many columns are there? Only one column. And row कितने बेटा? 1, 2, 3. Is that clear? So this matrix contains only one column, therefore it is known as column matrix. Now, what is the order of the given matrix? रो कितने हैं बेटा? 1. कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. जब भी आपको रो और कॉलम काउंट करना हो ना तो ऐसा ये जाना, हॉरिजॉन्टल रो बता देगा, वर्टिकल आओगे तो आपको क्या बता देगा? कॉलम. तो हॉरिजॉन्टल में एक ही बार जाना पड़ रहा है, तीनों नंबर कट हो जा रहे हैं. वर्टिकल के लिए 1, 2, 3. तो इसका ऑर्डर होगा बेटा 1/3. अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको कितना है? 1 टाइम. तीनों नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना. और अगर वर्टिकल में जाना होगा तो वर्टिकल में 1 टाइम और हॉरिजॉन्टल में देखो 1, 2, 3. तो पहले कौन सा लिखा जाता है? रो लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? रो. तो 3 rows and 1 columns, therefore its order is what? 3/1.
Is that clear? Next thing, row matrix, column matrix. Next, rectangular matrix. Rectangular matrix. What is rectangular matrix? रेक्टेंगल तो देखा ही होगा आपने ना, कि नहीं देखा है? हाँ पीयूष पांडे, रेक्टेंगल देखा है ना? हाँ बेटा, बस सेम वैसे अ मैट्रिक्स विच हैव अनइक्वल रो एंड कॉलम्स. क्या बोला मैंने? अ मैट्रिक्स विच हैव अनइक्वल रो एंड कॉलम्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. एग्जाम्पल देख लो, जैसे सपोज कर लो मैंने लिखा 3 -2 -5 -9 8 7. दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल ना, इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इट्स ऑर्डर इज व्हाट? हाउ मेनी रो? 2 रो. एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3 3. तो इस ऑर्डर इज 2/3. एनी डाउट? नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा बेटा, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर का भी शेप आपको पता ही है. यू नो द व्हाट इज द शेप ऑफ स्क्वायर? वेल नोन. आपने मैथ्स लिया है, बचपन से स्क्वायर सीखते चले आ रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेट सी बात है स्क्वायर तो आपको पता ही होगा. तो शेप में स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी? जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था तो क्या बताते थे बेटा? ऑल साइड्स आर इक्वल, यही बोलते थे ना. एक जनरल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, बाकी कोई बात नहीं. तो यहाँ पे भी वही है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स. दैट मीन्स अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स. क्या बोला मैंने? इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स. इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 2 5 3 -7. हाउ मेनी रो? 2. First row, second row. How many columns? 2. That means this order is what? 2/2. This is the 2/2 square matrix. Or 3 5 -2 -3 8 7 -9 0 5. How many row and columns are there? 1 2 3. 3 rows, 3 columns. Therefore its order is what? 3/3. These matrices are known as square matrix. You can say that a matrix whose order is m by m, number of row and number of columns are same, then the matrix is known as square matrix. Is that clear? Next word, diagonal matrix. Which? Diagonal matrix. अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना, दिस बिलोंग्स टू द स्क्वायर मैट्रिक्स. दैट मीन्स देखो, मैट्रिक्स में डायगोनल होता है. डायगोनल तो जानते ही हो बेटा आप, लाइक दिस. ये डायगोनल्स को छोड़ के जितनी भी एंट्रीज हैं, like this and here, they तीनों, right ना? All the other entries are 0 except diagonal entries, right ना? Then the matrix is known as diagonal matrix. Example 3 0 0 0 5 0 0 0 -3. Look here. Here diagonal entries are there and remaining entries are 0. Therefore this is known as diagonal matrix of order 3/3. Diagonal matrix of what order? 3/3. Similarly, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 0 0 5, here also diagonal entries है
other than diagonal entries all entries are 0. This is also diagonal matrix of order 2 by 2. तो वेल नोन. तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बेटा? देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑर्डर देखो 3 by 3 और 2 by 2 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको. दूसरा चीज़ क्या बोला मैंने? सेकंड थिंग, डायगोनल एंट्रीज हैं और अदर द डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सबकी सब क्या दिख रही है आपको? 0 दिख रही है, राइट? देयरफॉर दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. पॉइंट नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? सेम. अब ध्यान दो बेटा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या लिखने जा रहा हूं? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी ये, डायगोनल में भी काम करेगा. अब उसमें देखो क्या चेंजेस आता है लास्ट में. 3 स्टेप बताया मैंने. पहली चीज़ तो ये स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में होगी. दूसरी चीज़ क्या बोला मैंने? डायगोनल फॉर्म में होगी. अब तीसरी चीज़ बोलने जा रहे हैं बेटा. व्हाट इज द थर्ड थिंग? एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. 3 0 0 0 3 0 0 0 3. समझ में आया कुछ बेटा? और ये 2 by 2 का देख लेते हैं बेटा. 5 0 0 5. लुक हियर, दिस इज 3 by 3 and this is what? 2 by 2. Can you conclude anything by this and this? These 3 matrices. स्क्वायर है, यस. डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज अवेलेबल है. अदर द डायगोनल ऑल एंट्रीज आर 0. डायगोनल भी है. अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस है. दैट चेंजेस इज व्हाट? ऑल एंट्रीज आर सेम. अगर पहले नंबर पे 3 है तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी क्या होगा? 3 होगा. यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होगा? 5 होगा. दैट मीन्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, if all the diagonal entries are same, then the matrix is known as scalar matrix. Is that clear? Any doubt? If all the diagonal entries are same, then the matrix is known as scalar matrix. Is that clear? Any doubt? अब ध्यान रखो बेटा, अगर हम इसको रेक्टिफाई करना चाहें तो हम इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, हम इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं, और ये स्केलर तो है ही. डन. नेक्स्ट वर्ड आएगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. विच मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. नाम भी उसका वैसे ही है, आइडेंटिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने आइडेंटिटी का नाम तो बहुत बार सुना होगा ना? हाँ या ना? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो सामने वाले नंबर को अफेक्ट ना करे. सामने वाले नंबर को क्या ना करे? अफेक्ट ना करे. दैट मीन्स जैसे 2 आइडेंटिटी होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी वाली कौन सी बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एक कौन सी आइडेंटिटी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी. और दूसरी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे 3 है, उसमें कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दे, ऐड कर दे कि उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े. तो 3 + 0 इज इक्वल टू व्हाट? 3. या 3 - 0 इज इक्वल टू व्हाट? 3. मतलब 0 इज अ नंबर विच डज नॉट अफेक्ट नेक्स्ट नंबर बाई एडिशन और बाई सब्सट्रैक्शन. देन द 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी. 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली 3 into 1, 3 into -3 into 1. 3 into 1 is what? 3. -3 into 1 is what? 3. Right now? So 1 is what?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को क्या बोला जाता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड 0 इज व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स। हर जगह अलग अलग प्लेसेस पे आइडेंटिटीज बदलती जाती हैं। अब यहाँ हम किसकी, कौन से आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यू नो द आइडेंटिटी, तो समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी का मीनिंग। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है ना, इट्स लुक लाइक स्केलर मैट्रिक्स। किसके जैसा दिखेगा, स्केलर मैट्रिक्स के जैसा दिखेगा। अगर स्केलर मैट्रिक्स के जैसा दिखेगा तो डेफिनेट सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा, राइट। ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी। एग्जांपल देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है 3/3 का होगा बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 2/2 का जो आएगा वो होगा कितना बेटा 1 0 0 1, 2/2। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई से। देखो, ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट, ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हियर। फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2/2 और 3/3, 3/3 2/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, yes or no, yes. Next, second condition, diagonal matrix, other the diagonal entries, all entries are 0. Look here, diagonal 1 1 1 को छोड़ दो, बाकी सारी एंट्रीज कितनी है बेटा 0, तो डायगोनल भी हो गया। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, 1 1 1, राइट ना। और चौथी कंडीशन तो इसकी खुद की है, मतलब अगर यही डायगोनल में 1 के बजाय कोई और नंबर होता तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं होती। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दैट इज व्हाट 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट वर्ड इज point number 8, a triangular matrix, triangular matrix, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल, नाम है, स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, तो अब ट्रायंगुलर भी पढ़ लेते हैं ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो होती है बेटा, हाउ मेनी, 2 टाइप्स आर देयर। नंबर 1 अपर ट्रायंगुलर और नंबर 2 लोअर ट्रायंगुलर। फर्स्ट इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकंड इज व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात बताने जा रहा हूँ। ये भी ध्यान रखना स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। कौन से फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। अब डायगोनल लिखूंगा मैं 3 5 2 0 3 2 0 0 5। इज दैट क्लियर? बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे देख रहे हैं ना, दिस इज द डायगोनल 3 3 5। इफ बिलो द डायगोनल ऑल एंट्रीज आर 0, इफ, ध्यान से समझना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। इफ बिलो द डायगोनल all entries are 0, then the matrix is known as upper triangular matrix। देखो ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इफ बिलो द डायगोनल all entries are 0, then the matrix is known as upper triangular matrix। अब उसी का रिवर्स लोअर ट्रायंगुलर बोल दिया है। क्या बोल दिया बेटा? लोअर ट्रायंगुलर। तो उसका मैट्रिक्स क्या होगा, देखो जरा, 3 0 0 5 2 0 3 -2 8। लुक हियर, above the diagonal, above the diagonal all entries are 0,
above the diagonal all entries are 0, then the matrix is known as lower triangular, because यहाँ पे लोअर पोजीशन में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. कहाँ फॉर्म हो रहा है बेटा? लोअर पोजीशन में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? Below the diagonal all entries are 0, then the matrix is known as upper triangular matrix. Above the diagonal all entries are 0, then the matrix is known as lower triangular matrix. Is that clear? Next, equal matrix. इक्वल मैट्रिक्स. अब बेटा इक्वलिटी तो कभी भी होती है, तो इक्वलिटी या नॉन इक्वलिटी जो होती है वो तो हमेशा कंपेयर होकर मिलती है. जब तक कंपैरिजन करेंगे नहीं तब तक हम इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते. अब यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. अभी इक्वलिटी की अगर बात किया तो बेटा डेफिनेट सी बात है कि दो मैट्रिक्स में कंपैरिजन होना ही होना है, तो इक्वलिटी भी क्या होगी? कंपेयर में आएगी. टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी इक्वल. क्या बोला मैंने? टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल द एंट्रीज करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम. एग्जाम्पल देखो बेटा. मैट्रिक्स इज ए 3 5 -2 7 8 9, and second matrix is B 3 5 -2 7 8 and 9. Look here, first place, second place, third place, right? All the matrices, na, all the entries are same. Then matrix A is equal to matrix B. Then matrix A is known as equal to matrix B. Next word आएगा बेटा point number 10, that is equivalent matrix. Which matrix? Equivalent matrix. अब सोचो, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है. यहाँ पे हमने क्या नाम दिया? इक्वल नाम दिया, और यहाँ पे क्या नाम दिया बेटा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिया. इक्वल और इक्विवेलेंट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, उसको बहुत अच्छे से समझना है बस. इक्वल मैट्रिक्स में क्या बोला था मैंने? इफ ऑल एंट्रीज ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम देन दे आर नोन एज इक्वल मैट्रिक्स. अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगी? इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम. क्या बोला मैंने? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम देन दे आर नोन एज इक्विवेलेंट. एग्जांपल, इफ A इज इक्वल टू A B P C P Q R and matrix B is equal to 3 - 2 5 2 8 - 3, then matrix A is equivalent to matrix B. Why? Its order is what? 2 by 3. Again its order is what? 2 by 3. Both the matrices have same order, then they are known as equivalent matrix. Is that clear? Any doubt? बेटा इतना आज के लिए सफिशिएंट है. पहले ये सारे मैट्रिसेस आप अच्छे से पढ़ लेना. पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना. रिवाइज करने के बाद फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो. हम आपको जूम पे, अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम जूम पे या उस पे आपसे मिलेंगे और मिलके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे. सबका प्रॉपर नोट्स बना लेना. चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना. जो भी डाउट्स होंगे हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे. इज़ दैट ओके? बाय बाय.